Hello everyone, am I audible to all of you? Just let me know if yes, okay, ठीक है. So today we will discuss some of the most important issues which are important for this year means examination. Okay. Now what we will do, first of all, let me also give you some hints. Current में बहुत चीजें हम देखते हैं. Okay. How do we identify which can be asked in UPSC का sociology का paper? There is one hint which I'll give to you. Okay. If you look into previous year questions, you will see one pattern. The pattern is that of those areas which have disturbed the equilibrium. Equilibrium, all of you know what is equilibrium? Yes, bolo. All of you know what is equilibrium? Okay. Status maintenance, status quo, stability. Anything which disturbs the stability, anything which can cause conflict, anything which can cause disharmony to the system automatically becomes important. For example, Me Too movement. It caused disharmony to the system. Demonetization caused disharmony to the system. Right? Reverse migration caused disharmony to the system. Anything which can disturb the equilibrium becomes important. तो एक पैटर्न हमने ये पहचान लिया. दूसरा, anything related to death of a very important personality that year. Second area. Okay. Third area, any social welfare scheme which has completed its target or which has completed its program length. स्वच्छ भारत 2019 में टारगेट कंप्लीट हुआ, 2019 में आ गया. ओके. ये तीन पैटर्न आपने नोटिस करने हैं और कुछ नोटिस नहीं करना. ओके. नाउ द पार्लियामेंट हैज गिवन नॉड टू increase the marriage of girl from 18 to age of the girl from 18 to 21. Okay. Now this is not so important because ये अच्छी बात है, इसमें कुछ खराब नहीं है. जो कुछ खराब होएगा ना वही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए. You have to deal with the challenges associated with those things. So UPSC is not going to ask you anything related to that. Even if it asks you, it can be an exception to this rule. Okay. So let us begin with our most important topics for this year. The first topic which I have chosen is the report given by NFHS round 5. Before explaining you that report, let me give you a background, brief background. इससे पहले लोगों को कुछ ना पता हो NFHS के बारे में, सेक्स रेशियो सब के बारे में. Brief background. सेक्स रेशियो हम सबको मालूम है, right? There is one concept called as sex ratio, and then there is another concept called as sex ratio at birth. We know sex ratio, number of women with respect to 1000 men. Simple. कितनी ladies हैं in comparison to 1000 आदमी? For every 1000 men, how many women do we have? This is sex ratio, right? Second concept is sex ratio at birth. SRB. यानी कि पैदा होते टाइम, एग्जैक्ट पैदा होते टाइम कितनी वुमेन पैदा हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू 1000 बॉर्न मेन. ओके. नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड born vis-a-vis 1000
मेल चाइल्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट है बट ये इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि विदाउट दिस क्लैरिफिकेशन हम आगे का कुछ समझ नहीं पाएंगे, ये समझना जरूरी है। अब नाउ यू टेल मी, फटाफट वी विल डील विद दीस इश्यूज, ओके, क्विकली, क्योंकि 2 घंटे की क्लास है, हम फटाफट निपटाएंगे। यू टेल मी, एनएफएचएस की जो रिपोर्ट आई है, राउंड 5th ऑफ एनएफएचएस, इट सेज 1020 women, 1020 women for 1000 men. What was this? Sex ratio or sex ratio at birth? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूव हुआ, सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूव हुआ। अब मैं आपको डेटा दे रहा हूं कुछ, ओके, देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया विटनेस्ड हायर सेक्स रेशियो, मोर नंबर ऑफ वुमेन फॉर मेन, ओके, बट दिस इज नॉट ऑफिशियल डेटा, सेंसस का अभी डेटा आना बाकी है, बट उसके बावजूद भी एक पैटर्न हमें जरूर दिख रहा है। सेक्स रेशियो एट बर्थ अभी भी खराब है, सेक्स रेशियो इंप्रूव हो गया, सेक्स रेशियो एट बर्थ भी इंप्रूव हुआ, लेकिन सेक्स रेशियो एट बर्थ खराब है अभी भी, इंप्रूव भले हुआ है लेकिन खराब है अभी भी, ये समझने की जरूरत है। सेक्स रेशियो इंप्रूव भी हुआ और अच्छा भी है, चलो कुछ नया है, ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा है एनएफएचएस की सेकंड फाइंडिंग which was related to sex ratio at birth, or sex ratio at birth according to NFHS round 5 is 929 for 1000 male child. Now in comparison to NFHS round 4, this is 10 mark improvement. NFHS round 4 में, जो कि 2015-16 में जो भी हुआ होगा, उस टाइम 919 था, अब 929 हो गया, यानी इंप्रूवमेंट है, सही बात है, लेकिन ये खराब अभी भी है, क्योंकि WHO का स्टैंडर्ड क्या है? 952, स्टिल लोअर देन WHO स्टैंडर्ड ऑफ 952। अब ये 952 कहां से आया, इस पे हमें जाने की ऑफ कोर्स जरूरत है नहीं, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, 952 जो है नंबर, अकॉर्डिंग टू WHO, दिस इज नेचुरल सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये नेचुरल होता है, नेचुरली बायोलॉजिकली 952 ही होता है, ये उनका कुछ आया होगा साइंटिफिक मेथडोलॉजी जो उन्होंने लगाई है, उस हिसाब से नंबर आया उनका, ओके। अगर 952 से कम है कहीं पे भी, इसका मतलब नेचुरलिटी के साथ डिस्टॉर्शन किया है, किसने किया? ह्यूमन बीइंग्स ने, यानी कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर इन्वॉल्व हैं, तभी डिस्टॉर्ट होके 952 नहीं है, 929 है, क्योंकि 952 नेचुरल माना जाता है, इससे कम जो भी है यानी सोशल इंटरवेंशन रही है उसके अंदर, सोशल इंटरवेंशन रही है। अब हमने क्या समझना है, पिछले राउंड में यानी 4 में 919 था, इस राउंड में 929 है, हालांकि ये इंप्रूवमेंट है पिछले साल से, उसके बावजूद भी ये लोअर है, ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन बड़ा सीधा आएगा, डिस्पाइट कंटिन्यूअस and incessant efforts on the part of government or multilateral institution, the sex ratio at birth or child sex ratio remains biggest problem. Discuss reasons. ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, अगर पैटर्न को देखो तो ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रोबेबल है। नाउ इसका मतलब what will I discuss? I will not discuss why 1020 women, because this is not official data. Low chance for UPSC to ask you about this, high chance for UPSC to ask you about this.
यहां तक समझ गए तो यस बोलो, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है। लेट अस नाउ, सो हमारा एजेंडा क्या होएगा? सबसे पहला एजेंडा, एजेंडा नंबर 1, रीजंस फॉर लो सेक्स रेशियो एट बर्थ। ये हमारा एजेंडा है। ओके, नाउ हियर आई विल नॉट डिस्कस जनरल स्टडी वाले पॉइंट्स, ओके, आई विल डिस्कस विद यू सोशियोलॉजी वाले पॉइंट्स। ओके, so I will tell you about certain important case studies. कुछ important case studies I'll be discussing with you, which have discussed on this question multiple times in different intervals. Okay, and which have been discussed by different people as well, different scholars. So let me now come to this question. And also one more important finding from NFHS round 5, third finding. Two findings I have discussed with you. Third finding I will now also tell you about NFHS की fifth round की third finding, which is important. TFR, which is total fertility rate, has declined. Has declined. Okay. It has come to approximately 2%. ओके, अच्छी बात है या खराब बात है? अगर मैं जनरल स्टडी जैसे बात करूं, अच्छी बात है, खराब है? ठीक है, कॉमन सेंस की तरह अगर हम बात करें, ये अच्छा है या खराब है? अच्छी बात है। देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? कितने बच्चे पैदा कर सकती है एक लेडी अपनी जिंदगी के अंदर। पहले वो बच्चे पैदा कर सकती थी 2.4 2.3 समथिंग, टारगेट था कि बच्चे पैदा करने का 2.1 हो रिप्लेसमेंट लेवल, अब 2 हो गया है। अगर ये 2 से कम हो जाए, मान लो 1.5 हो गया, अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, 2.1 टारगेट था, 2 पे आ गए हैं, और कम जाएंगे अगर 1.4 तक आ सकते हैं, फिर 1.3, फिर 1 पे भी आ सकते हैं। ये जो ट्रेंड है, ये जो पैटर्न है, ये अच्छा है या खराब है? ये खराब है। क्यों खराब है? इसका सोशियोलॉजिकल इंप्लीकेशन समझो। अगर अगर हम बैकवर्ड जाएंगे, इससे क्या पता चलेगा? ऑल्दो number of child born to women is going to decrease now with ever increasing education and westernization, but then the problem would be that we will have more and more aged population in the future. समझे कि नहीं समझे? हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन हो जाएगी कल को, यानी जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको हम रीप कर नहीं पाए हैं अभी तक, करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, कल को वो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक बर्डन होएगा हमारे लिए। ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और जब ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होएगा? हमारे पास एफिशिएंट वर्कर्स नहीं होंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स नहीं होंगे, या यंग पॉपुलेशन नहीं होएगी। इसका मतलब क्या होएगा? इसका मतलब क्या होएगा? जैसे आज की डेट में अमेरिका में यंग लोग जाते हैं, यूरोप में यंग लोग जाते हैं, कल को इंडिया में यंग लोग आएंगे। इससे क्या होएगा? रिमेंबर डरखाइम, when you have with increased industrialization, when you have migration along with it, will it cause initially conflict or it will cause consensus? Initially it will cause conflict, and then we will have specialized division of labor, which will then reintegrate those people into harmony with each other. लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होएगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एनीवे, इन सब चीजों की मैं बात करूंगा आगे जाके, लेकिन फिलहाल ये 3 इंपॉर्टेंट, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स in this report of NFHS. Now let us start discussion on the first issue. Is this visible to all of you? Let me know. Yes? Okay.
ठीक है, ये हमने समझ लिया। ओवरऑल सेक्स रेशियो 1020, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। सेक्स रेशियो एट बर्थ 929, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा क्यों है? एक रीजन बता चुका हूं, इंप्रूवमेंट है लेकिन उसके बावजूद भी कम है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है? साथ में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाउ feticide or infanticide is now spreading to even those parts in India which traditionally had better sex ratios, such as tribal states of Chhattisgarh, Jharkhand and other states like Kerala. इसलिए ये cause of concern है। ओवरऑल सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ, सेक्स रेशियो एट बर्थ भी इंप्रूव हुआ, लेकिन सेक्स रेशियो एट बर्थ के अंदर इन्फेंटिसाइड, जो कि एक मेजर रीजन है सेक्स रेशियो कम होने का, वो प्रैक्टिस जो है इन्फेंटिसाइड की और फीटिसाइड की, वो अब स्प्रेड हो रही है उन एरियाज में भी जो कि कभी भी इन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते थे, जहां पे सेक्स रेशियो हमेशा बेटर रहता था। वो थे ट्राइबल बेल्ट्स। ट्राइबल एरियाज में कभी भी सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वहां पे डाउरी वाउरी नाम का कॉन्सेप्ट नहीं था, या फिर मेन का स्टेटस से एसोसिएशन, पेट्रीलिनियल स्ट्रक्चर, ये सब चीजें नहीं होती हैं इन अ मॉडल ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ओके, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सेक्स रेशियो हैज बिकम स्क्यूड इवन इन दोज एरियाज जहां पे ट्रेडिशनली बेटर सेक्स रेशियो होता था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है एफएचएस की। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन रीजंस फॉर लो सेक्स रेशियो एट बर्थ। सबसे पहले विल स्टार्ट विद जनरल प्रीनेटल फीमेल फीटिसाइड। प्रीनेटल फीमेल फीटिसाइड का मतलब क्या होता है? पैदा होने से पहले ही बच्ची को मार दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के थ्रू पता कर लिया लड़की होने वाली है, तो फीटिसाइड यानी फीटस में है वो लड़की, वहीं मार दिया। ओके, और ये क्यों होता है? ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज्ड एक्सेस टू अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ठीक है, इंडिया में ये प्रैक्टिस बैन है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रैक्टिस होती नहीं। बैन होना और प्रैक्टिस में होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, ये प्रैक्टिस में अभी भी है। ओके, सेकेंड रीजन फॉर लो सेक्स रेशियो एट बर्थ, इन्फेंटिसाइड। यानी कि अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट किया कि ये तो मेल आ रहा है, ठीक है नहीं मारते फिर तो मेल है, पैदा हुआ तो लड़की निकली। कई बार टेक्नोलॉजी भी फेल कर जाती है, टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग भी फेल कर जाते हैं। ठीक है, नहीं डिटेक्ट कर पाए, उनको लग रहा था कि लड़का है बट लड़की निकली, पैदा होने के बाद मार दिया। दिस इज नोन एज इन्फेंटिसाइड। पैदा होने से पहले मार दिया, फीटिसाइड। इसको ध्यान रखना है बेसिक टर्म्स को। थर्ड रीजन फॉर लो सेक्स रेशियो एट बर्थ, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। बच्चा हुआ, बच्ची हुई, बच्ची को खाना वाना टाइम पे कुछ दिया मत, ना दूध दिया, ना कुछ दिया, ना प्रोटीन दिया। ठीक है, neglect of girl child has also resulted into killing of daughters. Okay, fourth, postnatal sex selection, son meta preference. This is also one of the reason for skewed sex ratio. son meta preference क्या होता है? बच्चे को, लड़की को मार नहीं रहे, ठीक है, लेकिन लड़की जब तक हो रही है, जब तक लड़का नहीं होता और लड़की हो जा रही है, तब तक यू आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या होएगा अल्टीमेटली? 6 लड़कियां हो गई, लड़का अभी तक नहीं हुआ, एक और ट्राई, अब लड़का हो गया, अल्टीमेटली हुआ क्या? 7 बच्चे हैं, अब 6 लड़कियां एक लड़का, अब सारा खाना पीना सब उस लड़के पे जा रहा है, 6 लड़कियों को इग्नोर कर दिया अगेन। आ जाओ, ठीक है, यहां क्लियर है? यहां तक दिस वाज ऑल अबाउट जनरल स्टडी वाला पार्ट। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू स्पेसिफिक सोशियोलॉजिकल केस स्टडीज ऑन द रीजंस ऑफ लो सेक्स रेशियो एट बर्थ। यहां तक क्लियर है तो जल्दी बोलो यस। ठीक है,
नेक्स्ट, आशीष बोस। सबसे पहले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर, आशीष बोस। स्कॉलर बता रहा हूं, आशीष बोस किस कॉन्टेक्स्ट में? वाई लो सेक्स रेशियो इन इंडिया। ओके, इसकी स्टडी 90s की है। दिस मैन कंडक्टेड स्टडीज ड्यूरिंग 90s एंड ही कंडक्टेड स्टडी ऑन 1991 सेंसस। पर उस टाइम और इस टाइम में कोई फर्क नहीं है, उस टाइम और इस टाइम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चाइल्ड सेक्स रेशो उस टाइम भी कम था, चाइल्ड सेक्स रेशो आज भी कम है। इंप्रूव हुआ है लेकिन है अभी भी कम एब्सोल्यूट सेंस में। ओके, आशीष बोस की फाइंडिंग देखो तुम, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जनरली वी थिंक दैट विद डेवलपमेंट, with urbanization, with westernization, with modern education, the practices of killing daughters will be over. This is what generally we believe in common sense. But Ashish Bose found a different equation. With more development, you see more infanticide. उल्टा देखा, यानी sociology is enriching our common sense. Field studies is enriching our common sense. अब ये क्यों हुआ? देखो, आशीष बोस फाउंड लो सेक्स रेशियो और हाई फीमेल फीटिसाइड इन डेवलप्ड स्टेट्स। और डेवलप्ड स्टेट्स कौन सी हैं? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यानी नोएडा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। ये सब डेवलप्ड में आता है। ओके, सब डेवलप्ड स्टेट्स में आता है। In these developed states, Ashish Bose has found high female feticide. क्वेश्चन है ऐसा क्यों? अर्बनाइजेशन एंड क्लास पोजीशन। देखो क्या होता है, डेवलप्ड स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़िया है, बढ़िया है। इसका मतलब कि इजी एक्सेस है टू साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, ये जो टेक्नोलॉजी जो है एमिनियोसेंटेसिस की, ओके, सेक्स सिलेक्टिव प्रीनेटल टेक्नोलॉजी जो है, ये आपको रूरल एरियाज में नहीं मिलती, ये आपको अर्बन एरियाज में मिलती है। आपको शहर जाना पड़ता है, पर शहर जाने के लिए अगर कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है तो आपका काम आसान हो गया है। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्टेशन अगर मिल जाए, इजी एक्सेस टू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ के साथ अगर आप अमीर भी हो, पैसे दे सकते हो टेस्ट करवाने के उस मशीन से, अगर आप अपर और मिडिल क्लास के हो, यानी क्लास पोजीशन भी बढ़िया है आपकी, तो फिर बस सोने पे सुहागा, तीन चीजें मिल गई। तो प्लस अपर एंड मिडिल क्लास पोजीशन ऑफ फैमिलीज इनेबल देम टू पे फॉर सर्विसेज ऑफ मोबाइल डॉक्टर्स। तीन रीजन हमने अभी तक समझे हैं एक पॉइंट के अंदर फॉर हाई फीमेल फीटिसाइड। गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क प्लस इजी एक्सेस टू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्लस अपर एंड मिडिल क्लास पोजीशन which enable families to pay for services of mobile doctors. मोबाइल डॉक्टर्स क्या होता है? मोबाइल डॉक्टर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं बचपन में फैमिली डॉक्टर, सुना है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट? फैमिली डॉक्टर मतलब जो आपके घर आते हैं, आपको उनके घर नहीं जाना। फैमिली डॉक्टर जो होते हैं वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लग्जरी कार्स में। ओके, और फैमिली डॉक्टर्स को अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है। अपर और मिडिल क्लास पोजीशन चाहिए, और ये चीजें कभी क्लिनिक में नहीं होती, ये घर के अंदर होती है, प्राइवेट फेयर में, क्योंकि बाहर पब्लिक एक्सपोजर ना मिल जाए कहीं इस प्रैक्टिस का, तो वो मोबाइल डॉक्टर्स घर पे आके चेक करते हैं कि लड़की होएगा लड़का होएगा। और ये अफोर्ड करना सिर्फ अपर और मिडिल क्लास के हाथ में है, लो क्लास नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है? ठीक। दिस वाज वन रीजन गिवन बाय आशीष बोस फॉर हाई फीमेल फिटिसाइड इन डेवलप्ड स्टेट्स। ठीक है, सेकेंड रीजन, पीटरी लीनी।
लड़के का होना स्टेटस माना जाता है. एक देयर इज वन फैमिली वेयर वी हैव 2 sons. There is one more family where we have 2 daughters. Which family will enjoy higher status in society? Family with 2 sons enjoy higher status in society. ठीक है. Family with high number of sons reflect high status. Family with no sons has low status. इसीलिए भी फीमेल फीटिसाइड होता है. लड़की को बचपन में मार दिया जाता है. स्टेटस की भी बात है. ठीक है. वो तो मैंने बताया अभी. मैंने बताया था. ठीक है. सेकंड, ओवर. थर्ड रीजंस, ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन. थर्ड रीजन, देखो एक फैमिली है. ठीक है. जानबूझ के कवर कर रहा हूं स्क्रीन में ताकि आपका ध्यान पीछे ना जाए स्क्रीन पे, क्योंकि पेडागोजी ये बताती है हमें कि जब आप 3-4 विजुअल एड्स यूज करते हो, एक आदमी बोल भी रहा है और प्रेजेंटेशन भी चल रही है, तो सामने ऑडियंस का ध्यान टूटता है. ठीक है. इसलिए मैं बता पहले रहा हूं, उसके बाद पीछे जा रहा हूं. ठीक है. थर्ड मैंने बताया आपको, ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन. One family with 2 sons. Second family with 2 daughters. Now this family with 2 sons enjoy higher status definitely. Okay. But these 2 sons can easily afford good education also. Parents would be spending on education of male child. These sons will develop aspirations. इनका मन करेगा लंदन जाना है हायर स्टडीज के लिए, जाओ बेटा जाओ. अमेरिका जाना है, हाँ जाओ बेटा, पैसे हम दे रहे हैं. अब कम्युनिटी में क्या दिखेगा? इनके बच्चे अब्रॉड पढ़ते हैं, इनका स्टेटस और बढ़ गया. सही बात है. यहां तक ठीक है. अब देखो, क्योंकि मेन आर मोर मोबाइल देन वुमेन, तो फैमिलीज विद चिल्ड्रन अब्रॉड हैज हायर स्टेटस एंड इनकम लेवल ऑल्सो उनकी बड़ी होती है, क्योंकि बाहर पढ़ रहे हैं तो डॉलर्स में कमाएंगे. देन अ नॉन माइग्रेंट फैमिली. नॉन माइग्रेंट फैमिली कौन सी होती है? ज्यादातर जिसमें गर्ल चाइल्ड होती है. माइग्रेंट फैमिली ज्यादा कौन सी होगी? जिसमें मेल चाइल्ड होंगे. So therefore globalization is adding to the misery of girl child. हायर स्टेटस और हायर इनकम के लिए बाहर जाना है. लड़की बाहर भेज नहीं सकते, लड़कों को बाहर भेज सकते हैं तो लड़की को मार दो. समझ गए? यहां तक समझ गए तो यस बोलो जल्दी. ठीक है. लास्ट पॉइंट, वेस्टर्नाइजेशन. वेस्टर्नाइजेशन ने क्या किया है? वेस्टर्नाइजेशन हैज प्रमोटेड माइंडलेस कंज्यूमरिज्म propagated by TV channels for 24 hours. Advertisement and cost of marriage has also increased dowry demand. देखो क्या हुआ है वेस्टर्नाइजेशन से. आप नेटफ्लिक्स देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति देखते हो. ठीक है. दुनिया भर के चैनल्स और मूवीज देखते हो. एम्बिशन डेवलप हो जाता है, ऐसा घर चाहिए हमें, ऐसी गाड़ी चाहिए, ये सब होता है. अल्टीमेटली क्या होता है? जब ये माइंडलेस कंज्यूमरिज्म फैल जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो भी आप टीवी में देख रहे हो, तो अल्टीमेटली डाउरी की डिमांड बढ़ जाती है. उतनी ज्यादा आप शादी के टाइम डिमांड करोगे, क्योंकि आपका एक्सपोजर जो है नेटफ्लिक्स इन सबसे बहुत पहले हो गया है. कौन बनेगा करोड़पति आप देख चुके हो सारे सीजन, करोड़पति ही बनना है अब. जब डाउरी डिमांड बढ़ेगी तो लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो परेशान होंगे ना. तो जब लड़की पैदा होगी, फॉर देम लड़की इज नॉट लड़की, लड़की इज लायबिलिटी. इसके लिए डाउरी देनी पड़ेगी हमें, करोड़ों की. आज की डेट में तो 1 करोड़ से कुछ होता नहीं, 5 करोड़ मांगते हैं लोग. तो मार दो इसको यहीं पर. इसका मतलब 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. किसके हिसाब से? आशीष बोस के हिसाब से. और ये 4 फैक्टर्स आर मोस्ट विजिबल इन स्टेट्स which he called as Bimaru state. These are not states, basically these are districts. Bimaru state है. Bimaru is a word coined by Ashish Bose. Bimaru state है, but Bimaru districts हैं. ये ध्यान रखना है. हर स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं.
ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फीमेल फीटिसाइड होएगा या सबसे कम सेक्स रेशियो होएगा, वो डिस्ट्रिक्ट डिमारू डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। डिमारू का फुल फॉर्म क्या है? डॉटर एलिमिनेशन मेल एस्पायरिंग रेज फॉर अल्ट्रासाउंड which connote districts which are black holes in India's demographic transition. Most of these Dimaru districts are in Punjab, Haryana, Western UP, Chandigarh and Delhi. ये ऊपर बता दिया मैंने, यहां तक क्लियर? समझ गए? ठीक है, अभी नोट कुछ मत करो, नोट क्योंकि मैं आई विल प्रोवाइड यू दिस पीवीटी। नोट अगर करना भी है सिर्फ बुलेट पॉइंट्स नोट करना, ठीक है? क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा, ठीक है? क्वेश्चन अभी लास्ट में लेंगे, पहले इसको निपटा लूं मैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, एल.एस. विश्वनाथ। आशीष बोस हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं एल.एस. विश्वनाथ। ओके, आशीष बोस ने क्या बताया? रीजन फॉर लो सेक्स रेशियो। एल.एस. विश्वनाथ भी वही बताएगा, बाय लो सेक्स रेशियो। इसके लिए रीजन है संस्कृताइजेशन। देखो संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, और ये चीज एम.एन. श्रीनिवास ने भी बोली है। संस्कृताइजेशन का मतलब है लो कास्ट पीपल आर एम्यूलेटिंग कल्चरल लाइफस्टाइल ऑफ अपर कास्ट पीपल। डाउरी प्रैक्टिस is visible amongst upper caste traditionally. When low caste emulate upper caste, obviously low caste will also practice dowry. सिंपल बात है कि नहीं? बात खत्म होगी। यानी कि लो कास्ट में भी अब डाउरी प्रैक्टिस आ जाएगी, ठीक है ना? और लो कास्ट में डाउरी प्रैक्टिस आ जाएगी, इसका मतलब कि लो कास्ट में भी फीमेल इन्फेंटिसाइड शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उधर भी फीमेल इन्फेंटिसाइड शुरू हो जाएगा क्योंकि डाउरी आ गया है। तो गर्ल इज सीन एज लाइबिलिटी नाउ इवन इन लो कास्ट, ओनली बिकॉज ऑफ संस्कृताइजेशन। अच्छा, वेस्टर्नाइजेशन से संस्कृताइजेशन बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। जितना वेस्टर्नाइजेशन उतना संस्कृताइजेशन। आई टोल्ड यू कि वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन में देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। वन इज एंटागोनिस्टिक, सेकंड इज सिमेट्रिकल एंड थर्ड इज, एज यू नो आई हैव टोल्ड यू 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप, उसको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है? उनमें से एक है कि वेस्टर्नाइजेशन जितना होएगा उतना ज्यादा संस्कृताइजेशन होएगा। ओके, L.S. Vishwanath says lower caste and tribals in the pursuit of cultural emulation of upper caste have also adopted social evils like infanticide. For example, E.G. Jenkinson, who was magistrate of Saharanpur in mid 1830s. 1830s में magistrate था एक E.G. Jenkinson. उसने ये ऑब्जर्व किया कि लो कास्ट लाइक टुगास एंड कोलीज हैव अडॉप्टेड दिस प्रैक्टिस फ्रॉम अपर कास्ट। ट्रेडिशनली लो कास्ट में फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता था। संस्कृताइजेशन के बाद उधर भी वो आ गया क्योंकि डाउरी प्रैक्टिस उधर भी आ गई। समझ गए? अब इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वेरी in the very beginning of this lecture, NFHS round 5 had pointed out one more thing, that although sex ratio at birth has improved by 10 marks, 919 in NFHS 4th round to 929 in NFHS 5th round. However, infanticide is now also being observed traditionally in those states which were traditionally not practicing infanticide. And those states were largely tribal states like Chhattisgarh, Jharkhand. इनमें भी अब दिख रहा है फीटिसाइड। हालांकि चाइल्ड सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है, लेकिन इनमें भी अब दिखने लग गया है। इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गया है, ट्राइबल्स के अंदर भी, ट्राइबल स्टेट्स के अंदर भी वो प्रैक्टिस आ गई है। और वो अगर आप सोचो कॉमन सेंस से, रिजर्वेशन की वजह से भी डाउरी बढ़ सकता है। रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको मिला है? लो कास्ट को और ट्राइबल्स को ही। जितना ज्यादा उनको रिजर्वेशन मिला उतना ही ज्यादा वो हिंदुआइज हुए। more reservation, more Hinduization, more Sanskritization and more practice of dowry and female infanticide। बात खत्म। यहां तक समझ गए? यस बोलो जल्दी से, ठीक है?
नेक्स्ट, अमर्त्य सेन एंड जॉन ड्रेश, ये क्या बोलते हैं? इश्यू वही चल रहा है अभी तक, सेक्स रेशियो एट बर्थ कम क्यों है? 1901 के अंदर 1901 का जो सेंसस था उसमें सेक्स रेशियो अमंग चमार्स इन यूपी वाज 986। पैसिफिक कास्ट ग्रुप के अंदर सेक्स रेशियो अमर्त्य सेन और जॉन ड्रेश देख रहे हैं। एक कास्ट ग्रुप, पूरे इंडिया का नहीं, एक कास्ट ग्रुप, वो भी एक स्पेसिफिक स्टेट का, यूपी के अंदर चमार, 1901 में, वो भी 986 था। अच्छा है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। 1981 में उन्हीं चमार्स के अंदर सेक्स रेशियो ड्रॉप हो गया, 880 रह गया। 1901 से 1981, 80 साल में हुआ क्या ऐसा? कैन एनीबडी गेस? What happened in the span of these 80 years that sex ratio dropped? वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, रिजर्वेशन, अर्बनाइजेशन, जो जो अभी तक पढ़ा आशीष बोस ने जो बताया वो सब हुआ। हाँ हाँ, तो वो बताया ना, माइंडलेस कंज्यूमरिज्म। कैपिटलिज्म वही है। माइंडलेस कंज्यूमरिज्म मतलब क्या? कैपिटलिज्म। ओके, तो नाउ शेड्यूल्ड कास्ट इन यूपी आर मोर लाइक नाउ, अमर्त्य सेन सेज कि अब 1981 में इनका ड्रॉप हो गया। इससे ये पता चलता है कि अब एससीज और अपर कास्ट में कोई फर्क नहीं बचा। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट इन यूपी आर मोर लाइक द हायर कास्ट देन दे यूज्ड टू बी, क्योंकि इनमें भी अब सेक्स रेशियो एट बर्थ कम है। ट्रेडिशनली इनमें कम नहीं होता था, इनमें भी अब कम होना शुरू हो चुका, ठीक है। यानी जहां जहां ट्रेडिशनली नहीं होता था लो, उधर भी लो होना शुरू हो गया है। उसके रीजंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। नेक्स्ट, सतीश अग्निहोत्री, वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर। सतीश अग्निहोत्री को सब लोग कोट करते हैं, इवन आशीष बोस भी इसको कोट करता है, अमर्त्य सेन भी इसको कोट करता है, ठीक है। A scholar quoted by scholars. सतीश अग्निहोत्री की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इसकी। देखो, लड़की को मारने के दो तरीके हैं, ठीक है। डोंट माइंड माई वर्ड्स, ये मैं ऐसे जान के बोल रहा हूं ताकि जल्दी समझ आए। लड़की को मारने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो पैदा होने से पहले मार दो, फीटिसाइड, या पैदा होने के बाद मार दो। अब मुझे जल्दी से बताना कौन सा रूट अपनाऊंगा तो क्रिमिनल नहीं कहलाऊंगा? जल्दी बोलो। फीटिसाइड से तो मैं क्रिमिनल नहीं बनूंगा, बच जाऊंगा। इन्फेंटिसाइड करूंगा तो मैं क्रिमिनल हूं। तो कौन सा रूट सही है? फीटिसाइड। अब फीटिसाइड therefore which is done through sex determination technology is actually legitimizing the killing of daughter. When you compare feticide with infanticide, infanticide is seen as barbaric act. When you see infanticide as barbaric act, somehow feticide assumes holier pedestal. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब इन्फेंटिसाइड बारबेरिक हो जाता है ना, तो फीटिसाइड होलियर लगता है। इट इज नॉट मेकिंग मी बारबेरिक, एटलीस्ट फीटिसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या होएगा? इसका मतलब वही होएगा जो मैं बताऊंगा। सिंस प्रीनेटल सिलेक्शन इज साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी के थ्रू साइंटिफिक है, न्यूट्रल है और परफॉर्म्ड होता है बाय प्रोफेशनल डॉक्टर्स, देयरफॉर prenatal selection has gained legitimacy to the elimination of child on basis of sex. India goes with prenatal technology and Bharat goes with infanticide. क्यों?
Prenatal technology cannot be afforded by every person. Rural area therefore goes for affordable alternative. Affordable alternative is nothing but infanticide. अब ये क्राइम है तो भी वो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अपर और मिडिल क्लास भी करता है, वो पैदा होने से पहले करता है, हम पैदा होने के बाद करते दोनों एक ही हैं, तो हम क्यों क्रिमिनल? यानी कि उनको ये चीज समझ नहीं आती, उनको उल्टा लगता है पुलिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी भी गरीबों के अगेंस्ट। उनके पास मैसेज ये जाता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस बोलो जल्दी से। ठीक है। Since India does not commit barbaric practice of killing newborn, the prenatal technology occupies holier pedestal and doctors claim to be doing social service. डॉक्टर्स अपने आप को बोलते हैं हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, हम कोई क्राइम नहीं कर रहे। ठीक है। Since technological alternative gets legitimized in comparison to infanticide, इसीलिए this actually sanctifies the idea of elimination of child on basis of sex. टेक्नोलॉजी के थ्रू करने से लेजिटिमेसी मिल जाती है, आप बारबेरिक नहीं कहलाते हो, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली दिस होल रिचुअल इज सैंक्टिफाइंग द आइडिया ऑफ एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड। वो तो यही रहा है अनइंटेंशनली, एंड दिस इज द रीजन व्हाई it is spreading even among those who never did it before. For example, high caste in rural Bihar, rural Tamil Nadu, जो लोग नहीं करते थे वो भी अब करने लग गए हैं, क्योंकि मैसेज उनके पास क्या गया है? मैसेज उनके पास ये गया है कि आप कर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कर सकते हो, वैसे नहीं, उनके पास यही मैसेज गया है। ठीक है, ये बात है। इलीगल तो है बहुत कुछ, मैंने वही कहा, इलीगल होना अलग चीज है, प्रैक्टिस में होना अलग चीज है। ठीक है, प्रैक्टिस में अभी भी है। यस, इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस इंडिया में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पीटीसाइड। पीटीसाइड अफोर्ड करना मुश्किल भी है और इलीगल भी है, उसके ऊपर मेडिकल रेगुलेशंस भी हैं। इन्फेंटिसाइड पे रेगुलेशन लॉ का है, लेकिन वो करना तो आसान है ना। ठीक है, मीरा शिवा लास्ट स्कॉलर। मीरा शिवा क्या बोलती है? मीरा शिवा बोलती है अभी तक आज तक मैंने जितने स्कॉलर्स पढ़े हैं इस रीजन के ऊपर कि सेक्स रेशियो एट बर्थ कम क्यों है, सब बताते हैं अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सब। वो बोलती है फैक्ट ये है वुमेन खुद अबॉर्ट करती है लड़कियों को। ठीक है, अर्बनाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन की बात नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वुमेन वुड देमसेल्व्स अबॉर्ट गर्ल चाइल्ड। वो बोलती है अगर इफ वुमेन इज डूइंग दिस, डोंट थिंक he is doing something criminal or horrific or barbaric. He is actually doing to save her child from larger patriarchal society, जिसकी विक्टिम वो खुद रह चुकी मदर। वो नहीं चाहती उसकी बच्ची भी इस दुनिया में आए और यही सब चीजें फेस करे, इसलिए अपनी बच्ची को बचा रही है उसको मार के। ये क्या है? ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? पेपर वन, विच पर्सपेक्टिव? और फेमिनिस्ट बोल दोगे तुम, क्योंकि लड़की का मैंने बात कर दी और मीरा शिवा लड़की है इसलिए, है ना। ये मत करना गलती से भी। मुझे पर्सपेक्टिव का नाम बताओ। दिस इज, जल्दी बोलो, कौन सा पर्सपेक्टिव है? दिस इज नोन एज इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द रीजन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु आर डूइंग दिस। दिस इज नॉट स्ट्रक्चरल थ्योरी जो अभी तक हमने पढ़ी थी, ये इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी है मीरा शिवा। ओके, women themselves opt for female feticide not because they are heartless, but because they are genuinely concerned about fate of girls who are increasingly subjected to eve teasing, molestation, sexual harassment, bride burning, dowry death। इतनी उसको बेबसी से क्यों निकलवाऊं इस दुनिया में मैं, जहां पे ये सब होता है, इसलिए पहले मार दिया। समझ गए? तो विद दिस one topic is
ओवर। सेक्स रेशियो एट बर्थ ओवर है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत चांस है आने के। सेकेंड टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज मिसिंग वुमेन। ओके, लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू थिंक बाय मिसिंग वुमेन। मिसिंग वुमेन का मतलब आप क्या समझते हो? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉइंड बाय अमर्त्य सेन, ये हम सबको मालूम है, बट मिसिंग वुमेन का मतलब क्या है? एक स्कूल के अंदर 50 लड़के पढ़ रहे हैं, 4 लड़कियां पढ़ रही हैं, ये मिसिंग वुमेन है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मेन प्रेजेंट है, ठीक है, ज्यादा, और फीमेल रिप्रेजेंटेशन कम है, मिसिंग वुमेन बोलेंगे कॉन्सेप्चुअली? ठीक है, कॉन्सेप्चुअली तो नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमर्त्य सेन का डेफिनेशन बड़ा स्पेसिफिक है। मिसिंग वुमेन का मतलब होता है एट बर्थ जो मिसिंग है, एट बर्थ, पैदा होते टाइम जो मिसिंग है, उन सबको मिसिंग वुमेन बोला जा रहा है। ये पैदा क्यों नहीं हुई, ये गायब कैसे हैं, स्क्यूड रेशो कैसे है, लड़के ही पैदा हो रहे हैं, लड़कियां नहीं पैदा हो रही, कहां गई वो है मिसिंग वुमेन। ऑफिस के अंदर लड़कियां कम है, वो मिसिंग वुमेन नहीं है। स्कूल में लड़कियां कम पढ़ रही, वो मिसिंग वुमेन नहीं है। का ध्यान रखना। हालांकि हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं वो दिखाने के लिए भी, बट वो हम यूज करते हैं, एक्चुअली में वो नहीं है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब मिसिंग वुमेन थीसिस जो आई थी, वो क्यों आई थी? क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि लड़कियां कम पैदा होने का रीजन बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, अमर्त्य सेन ने बताया लड़कियां कम होने का रीजन बायोलॉजिकल नहीं, सोशल है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ये डिफरेंस बिल्कुल सेक्स और जेंडर वाला है, एक नेचुरल एक सोशल। उसी तरह मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट जो है, इट वाज एक्चुअली, इनिशियली इट वाज बिलीव्ड बाय एमिली ऑस्टर, एक स्कॉलर है, ये बोलती थी मिसिंग वुमेन वाज प्योरली बायोलॉजिकल इशू, cause for higher male to female was hepatitis B, which causes women to conceive more boys than women. अगर हेपेटाइटिस बी जब आपको होता है ना, तो चांसेस ज्यादा हैं कि लड़का ही पैदा होएगा, आपकी लड़कियां होने का चांस कम होता है। इसका मतलब कि एमिली ऑस्टर ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि मिसिंग वुमेन का रीजन बायोलॉजिकल है, हेपेटाइटिस बी है। कहाँ पे है? लार्जली डेवलपिंग कंट्रीज में हेपेटाइटिस बी है, इसलिए वहां पे लो सेक्स रेशियो है। अमर्त्य सेन बोलता है ऐसा नहीं है, मिसिंग वुमेन इज प्योरली ड्यू टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बायोलॉजिकल रोल नहीं है। फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, फूड ना देना, एजुकेशन ना देना, हेल्थ केयर लो रखना, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करना, ये बायोलॉजिकल चीजें नहीं है, ये सोशल फैक्टर्स हैं। अमर्त्य सेन बोल रहा है दीज आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लो सेक्स रेशियो एट बर्थ। और इस चीज को मिसिंग वुमेन बोलते हैं। मिसिंग वुमेन मतलब लो सेक्स रेशियो एट बर्थ। पार्लियामेंट में वुमेन कम होना इज नॉट मिसिंग वुमेन, बट वो यूज कर सकते हो, बट वो मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, अब जब अमर्त्य सेन ने ये थीसिस दी थी, तो लार्जली हमने समझा कि मिसिंग वुमेन रेफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट इन पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, नोटेबली इन इंडिया, द रेशियो ऑफ वुमेन टू मेन इज सस्पिशियसली लो, सस्पिशियसली लो। अब रीजंस क्या क्या हैं? प्रीनेटल फीमेल फीटिसाइड जो हम पढ़ चुके हैं, इन्फेंटिसाइड पढ़ चुके हैं, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी पढ़ चुके हैं, पोस्टनेटल सेक्स सिलेक्शन, सन मेटा प्रेफरेंस पढ़ चुके हैं, एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी। देखो, देयर इज वन स्कॉलर
सिवान एंडरसन एंड रे ये बोलते हैं मिसिंग वुमेन है, बात सही है, लेकिन मिसिंग वुमेन की जगह मिसिंग गर्ल चाइल्ड वर्ड यूज करना चाहिए था अमर्त्य सेन को। सही बात है, मिसिंग वुमेन क्यों बोल रहा है वो बोलते हैं चलो ठीक है अमर्त्य सेन ने गलती कर दी वुमेन वर्ड बोल के, लेकिन फैक्ट ये भी है कि छोटी लड़कियों से ज्यादा बड़ी लड़कियां मिसिंग है। छोटी लड़कियों से ज्यादा यानी विमेन मिसिंग है एक्चुअली में, गर्ल चाइल्ड उतनी नहीं जितनी विमेन है एक्चुअली में। तो ये अभी रिफाइन कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। रीजन क्या कोट करते हैं ये बड़ी वुमेन के मिसिंग होने का? सबसे बड़ा रीजन है मिसिंग अनमैरिड वुमेन की बात कर रहे हैं वो, मिसिंग अनमैरिड वुमेन, सिंगल वुमेन, अडल्ट वुमेन, ओके। रीजन सबसे बड़ा देते हैं वो वीडोहुड। वीडोहुड यू नो वीडोहुड का मतलब क्या होता है? अ वीडो इन रूरल इंडिया is seen as witch. वीडो इन रूरल इंडिया आज की डेट में भी सीन एज विच, को मार दिया जाता है, ठीक है। और साथ के साथ वीडो इन द पेट्रीलिनियल सोसाइटी डज नॉट हैव एक्सेस टू इकोनॉमिक प्रॉपर्टी एंड सोशल रिसोर्सेस। शी ऑल्सो फेस सोशल स्टिग्मा और उसको बैड लक का ओमन भी बोला जाता है। ये जहां जाएगी बर्बाद करेगी, जिस भी घर में जाएगी, इसको अंदर बिठा के रखो। वो सुसाइड कर लेती है, सिंगल है वो, डिवो वीडो का मतलब क्या हुआ? अब वो सिंगल है, हस्बैंड मर गया, अब ये सिंगलहुड उसको सुसाइड करवा रहा है। कौन याद आएगा? डरखाई। जब तक मैरिड थी खुश था, सिंगल होते ही सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही। मिसिंग अडल्ट वुमेन, समझे? Sivan Anderson says missing women were distributed across different age groups, regions, and cause of death. Vast majority of missing women were actually of adult age. Okay, not infant. Largely they were adult age. अब है reasons for missing adult women. First है widowhood. Widows can be accused of witchcraft and persecuted if they are suspected to have somehow caused their husband's death. ठीक है। Add to these a variety of customs and beliefs, seclusion and confinement from family and community, उसको अलग रखते हैं। परमानेंट चेंज ऑफ डाइट एंड ड्रेस, उसका डाइट और ड्रेस भी अलग रखेंगे अब वीडो का। डिस्करेजमेंट ऑफ वीडो फ्रॉम रीमैरिज, शादी नहीं करने देंगे दोबारा उसको। एंड द फैक्ट दैट ऑफन widows in South Asia are considered bad luck and to be avoided. They are unwelcome at social events, ceremonies and rituals. Ultimately क्या करेगी वो? Either she will be vulnerable to rape or she will be vulnerable to suicide. इसलिए मिसिंग अडल्ट वुमेन। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो यस। ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जेंडर गैप, विच ऑल ऑफ अस नो। उसका रिपोर्ट भी अभी आया था 2021, जेंडर गैप इंडेक्स। ओके, जेंडर गैप इंडेक्स को रट लो, ये जो टेबल मैं दे रहा हूं इसको रट लो, हर जगह इसको मारना है, ठीक है। ये टेबल आपको आपका आंसर को ऑर्गेनाइज करेगा। आप ऐसे नहीं बुलेट बनाओगे कि पॉलिटिक्स अलग, इकोनॉमिक्स अलग, सोशल अलग, ये वो सब नहीं, एक ही जगह आप ढंग से बना दो एक ग्राफ। अगर याद कर सकते हो तो बेटर है। ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट हमें क्या दिखाती है? जेंडर गैप इन इंडिया हैज वाइडेंड टू 62.5%, 2021 की रिपोर्ट है ये, ड्यू टू वुमेन्स इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, टेक्निकल एंड लीडरशिप रोल्स, डिक्रीज इन वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पुअर हेल्थ केयर, लैगिंग फीमेल टू मेल लिटरेसी रेशियो, इनकम इनइक्वालिटी। ये क्या है? मिसिंग अडल्ट वुमेन। नॉट जस्ट मिसिंग वुमेन, मिसिंग अडल्ट वुमेन। समझे कि नहीं समझे?
हाँ, ठीक है। इस टेबल को याद कर लेना, इसमें मैंने इंडेक्सेस दे रखे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2006 में हमारा रैंक क्या था, 2021 में क्या रह गया है, 4 आया है, ठीक है। 0.60 था हमारा 2006 में, 0.63 है 2021 में। दिखने में अच्छा लग रहा है कि इंप्रूवमेंट किया है। जितना आप 1 की तरफ जाओगे उतना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सब डिविजन्स में जाओ आपको कुछ बड़ी चीज दिखेंगी। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन का 2006 में कम था, अब बढ़ गया है। एजुकेशनल अटेनमेंट कम था, अब बढ़ गया है। हेल्थ एंड सर्वाइवल कम था, अब बढ़ गया है। पॉलिटिकल इंपावरमेंट कम था, बढ़ गया, लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो उस कंपैरिजन में आपको दिखेगा इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट कुछ नहीं, अभी भी मिसिंग है, लैग अभी भी आपको दिखेगा, ठीक है। कम था, बढ़ गया है, बट व्हेन यू कंपेयर दिस विद मेन आपको दिखेगा ये अभी भी कम है। अभी हम इस जेंडर गैप में क्या देख रहे हैं, विमेन का पोजीशन 2006 में, विमेन का पोजीशन 2021 में। 2021 की रिपोर्ट 2006 के कंपैरिजन में दिखाया जा रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू मैन आप देखोगे आपको पता चलेगा ये अभी भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट, तो दिस टॉपिक इज कंप्लीटली ओवर। हमने क्या ध्यान रखना है, सेक्स रेशियो एट बर्थ का क्वेश्चन आएगा, हमने इस कॉलेज ध्यान रखने हैं, वो क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंट है इस साल के लिए। नाउ डोमिनेंट कम्युनिटीज, मराठा, जाट, पटेल, गुजर, कापूस, दे आर क्लेमिंग बैकवर्ड स्टेटस। मराठा को बैकवर्ड स्टेटस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया इस साल, थप्पड़ मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वापस ले लिया, नहीं हो बैकवर्ड। क्यों नहीं हो बैकवर्ड? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को बोला तुम कौन होते हो किसी को बैकवर्ड स्टेटस देने वाले, तुम एक छोटे से स्टेट हो, ठीक है। तो फिर स्टेट ने बोला तो दिक्कत क्या होगी अगर हम छोटे से स्टेट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिक्कत कुछ नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास डिसाइड करेगा कौन बैकवर्ड है कौन नहीं, स्टेट कुछ नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक है। कि पॉलिटिकल मामला नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आज तुमने किया बैकवर्ड स्टेटस डिक्लेयर मराठा को, कल को कोई और अपने स्टेट वाले अपने अपनी डोमिनेंट कम्युनिटीज को बैकवर्ड स्टेटस देने लग जाएंगे, ये थोड़ा ना कोई बात हुई। तो अब क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल द रिजर्वेशन गिवन टू मराठास, therefore this issue becomes important. Okay, now let us understand the reasons for claim of backward status. Give me 2 minutes break, मेरा थोड़ा गला सूख रहा है। विजिबल है क्या, ऑडिबल है? ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट इशू। डोमिनेंट कास्ट्स एंड रिजर्वेशन। किस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है? मराठास को बैकवर्ड स्टेटस मिला था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ओके। इस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। रोहिणी कमीशन भी बनी है इफ यू रिमेंबर, ओके। रोहिणी कमीशन क्यों बनी है? ओबीसीज एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, ओबीसीज के अंदर सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ताकि हमें पता चले असली ओबीसी कौन है, हु आर एक्चुअली द एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन में मैक्सिमम जो एलीट ओबीसीज हैं वही रिजर्वेशन प्राप्त करते जा रहे हैं, जो रियल बैकवर्ड हैं उनको नहीं मिल रहा, इसलिए सब कैटेगराइजेशन बना दिया है, 4 कैटेगरीज बनाने की बात करी है रोहिणी कमीशन। ये सब चीजें न्यूज में चल रही हैं, इसलिए डोमिनेंट कास्ट और रिजर्वेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ डोमिनेंट कास्ट as you know is a concept given by M.N. Srinivas, okay, and M.N. Srinivas clearly talked about multiple dominant caste. He did not talk about only Vocaligas, he talked about Jats, Marathas, Kapus, Gujars, Patels, Ahirs, ठीक है, पटीदार्स, ये सब सबकी उसने बात करी, रेड्डीज, ठीक है। These people
till 1990s were against a reservation given to SCs and ST. 1990 तक ये लोग खुद रिजर्वेशन के अगेंस्ट होते थे, मराठा, जाट, गुजर, पटेल। 1990 में जैसे इनको रिजर्वेशन मिला ये खुश हो गए। अब ये दे आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट ये है, व्हाई डिस्पाइट बीइंग डोमिनेंट कास्ट दे वांट बैकवर्ड स्टेटस। डोमिनेंट कास्ट का मतलब होता है फॉरवर्ड कास्ट, बट दे वांट बैकवर्ड स्टेटस। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है, बजाय कि हम ये समझे किसको मिला किसको नहीं, जो कि जीएस में आएगा। ठीक है, हमारे लिए समझना जरूरी है पैटर्न, ये पैटर्न क्यों आया इंडिया में। ओके, इसके कुछ रीजंस हैं जो मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट रीजन, हेडिंग है रीजंस फॉर क्लेम ऑफ बैकवर्ड स्टेटस। पहला रीजन, अग्रेरियन डिस्ट्रेस। देखो, इसको समझाने के लिए मैं वापस जाता हूं। पहला रीजन मैं लिख रहा हूं अग्रेरियन डिस्ट्रेस है। हमें ये चीज अच्छे से मालूम है, डोमिनेंट कास्ट आर लार्जली पेजेंट कास्ट्स। ये आपको मालूम है, जाट, गुजर, पटेल, पटेल छोड़ दो एक सेकंड के लिए, बट लार्जली डोमिनेंट कास्ट आर लार्जली पेजेंट कास्ट। जो पेजेंट कास्ट होती हैं दे रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, बट इफ एग्रीकल्चर कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन नाउ ड्यू टू डिस्ट्रेस, ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी, ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, मॉनसून का फेलियर, डिस्ट्रेस हो गया, फिर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, रूरल बैंक्स फेल कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स नहीं चल रहे, मल्टीपल रीजन हो सकता है। ठीक है, जब ऐसा होएगा तो क्या होएगा, वो बोलेंगे कि भाई फिर हमें अब जॉब्स दो, यही बोलेंगे ना वो। अगर वहां पे उनका इनकम नहीं बन रहा तो वो बोलेंगे जॉब्स दो हमें। जॉब्स देने का मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन, यानी नाउ दे वांट नॉन फार्म ऑक्यूपेशन। Farm is not yielding anything to them now due to distress. Therefore, now they want non-farm occupations. Non-farm occupations का मतलब दो ऑप्शन हो जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। सही बात है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है नहीं, क्या बच गया, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कोटा है कईयों के पास, हमें कैसे मिलेगा, हमें तभी मिलेगा अगर हमारे पास भी कोटा हो, बात खत्म। समझ गए, यहां तक क्लियर है। एंड देयरफॉर सतीश देशपांडे he says he the claim for backwardness among the dominant community is an expression of caste entitlement than a claim to class disadvantage। इसका मतलब ये है कि जब ये लोग कोटा मांगते हैं, ये मांगते हैं हक से कि हमें कैसे नहीं मिलेगा, हम गुजर जाट हैं, जब चमार को मिल सकता है तो हमें तो मिलना ही चाहिए। ये ऐसे देखते हैं कोटा को। तो कोटा डिमांड टू देम इज मोर एन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट एंटाइटलमेंट देन अ क्लेम टू क्लास डिसएडवांटेज। इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, इसलिए क्योंकि हम जाट हैं इसलिए दो रिजर्वेशन। समझे कि नहीं समझे? लेट मी नाउ कम टू द स्लाइड। स्लाइड हमें बताती है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, especially declining importance of agriculture, land fragmentation, growth of corporatized agriculture, water shortage, intergenerational subdivision of land holding has tended to produce downward mobility in agrarian sector. इस वजह से डिमांड फॉर रिजर्वेशन कैन बी सीन एज एक्सप्रेशन ऑफ देयर डिजायर टू शिफ्ट अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड टुवर्ड्स नॉन फार्म ऑक्यूपेशन। तो रिजर्वेशन टू देम इज अ मीन्स टू अर्बनाइजेशन। समझे कि नहीं समझे? यहां पे जल्दी से यस बोलो। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज क्लासिसाइजेशन ऑफ कास्ट, a concept given by D.L. Sheth.
classicization of caste. It is a process wherein caste lose its traditional functions and acquire new economic interest and political identity. जो हमने ऊपर देख लिया है, peasant caste don't want to work as peasants on agriculture sector now because agriculture is not yielding any benefit to them. यानी वो अर्बनाइज होना चाहते हैं, वो स्किल चाहते हैं, वो नॉन फार्म ऑक्यूपेशन चाहते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में पोजीशन चाहते हैं. इसका मतलब कास्ट इज लूजिंग इट्स ट्रेडिशनल फंक्शन एंड इज एक्वायरिंग न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट. दिस इज नोन एज क्लासिसाइजेशन ऑफ कास्ट. क्लासिसाइजेशन ऑफ कास्ट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, रियल शीट. ये प्रोसेस हमें एक और टर्म याद दिलवाएगा which was coined by Talcott Parsons. Talcott Parsons talks about a concept called as structural differentiation. Structural differentiation का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर अपना ट्रेडिशनल फंक्शन लूज कर देता है और फिर नया फंक्शन अक्वायर करता है. ठीक है, कास्ट का भी पॉलिटिसाइजेशन होने का मतलब कास्ट ने नया अवतार अज्यूम कर लिया है, पुराने अवतार जा रहे हैं मैरिज और जॉब वाले. ठीक है. थर्ड रीजन, क्रिपल्ड अर्बन इकोनॉमी. रिजर्वेशन की डिमांड का मतलब क्या है? एक रीजन, क्रिपल्ड अर्बन इकोनॉमी. प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ है ही नहीं, जॉब्स मिल नहीं रही हैं, अपर कास्ट को भी नहीं मिल रही, हमें कैसे मिलेगी? इसलिए रिजर्वेशन दो हमें गवर्नमेंट जॉब में. डोमिनेंट कम्युनिटीज आर टर्निंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, बात बिल्कुल ठीक है, बट दे हैव वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज टू गेट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर. Thus, only option left for them is government jobs. However, their general status makes the competition tough for them, therefore OBC demand. समझे? ठीक है. नेक्स्ट, relative deprivation, resentment against other communities. इनको गुस्सा आता है SC STs पे, इनको मिल रहा है हमें क्यों नहीं? And SC STs have gained upward mobility to such an extent now even you would find, as many studies have also quoted, सिवान एंडरसन, अश्विनी देशपांडे, इन सब की स्टडीज ये बताती हैं SC STs की मोबिलिटी बहुत ऊपर हो गई है. ओबीसी, ये जो डोमिनेंट कास्ट सो कॉल्ड थी, ये नीचे रह चुके हैं. SC ST एजुकेशन में भी है ऊपर इनके कंपैरिजन में, ब्यूरोक्रेसी में भी उनका रिप्रेजेंटेशन इनसे ज्यादा हो जाता है. रिजर्वेशन में उनको बहुत फायदा मिला है. इन लोगों को अभी तक रिजर्वेशन मिला नहीं, ये लोग की कम्युनिटी गायब है, यूनिवर्सिटी में भी ये लोग की कम्युनिटी गायब है, ब्यूरोक्रेसी में भी, इसलिए इनको रिजर्वेशन चाहिए. इनको गुस्सा आता है SC STs पे. ओके. रिलेटिव डेप्रिवेशन, resentment about reservation driven mobility of lower caste make them anxious about preserving the social distance that separates them from caste they consider to be inferior. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? Reservation to SCs is a tool which can undo the historical injustice or which can fix the historical injustice, but reservation to them, to dominant community, is a means to maintain the same social distance in the hierarchy which they had preserved for a very long time. इनको लग रहा है हायरार्की में SCs नीचे आते हैं हमसे, ऊपर हमसे जा रहे हैं, अब सेकुलर हायरार्की में इनको वापस नीचे की लेके तरफ जाना है, इसलिए हमें रिजर्वेशन देना जरूरी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हैज टू बी मेंटेन्ड इन दी कास्ट हायरार्की. समझ गए? फोर्थ रीजन, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी. कॉन्सेप्ट कॉइंड बाय, जल्दी बताओ. स्टेटस इनकंसिस्टेंसी इज अ कॉन्सेप्ट कॉइंड बाय, हाँ, जेरार्ड लिंस्की. ठीक है. स्टेटस इनकंसिस्टेंसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हम, ठीक है, पर पैसा उतना नहीं है. दूसरा, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं पर स्टेटस उतना नहीं है. ठीक है, यानी कि एक के पास पैसा है, स्टेटस नहीं, दूसरे के पास स्टेटस है पर पैसा नहीं. स्टेटस इनकंसिस्टेंसी. उसी तरह डोमिनेंट कम्युनिटीज, इनके पास स्टेटस है, सोशली फॉरवर्ड, बट इकोनॉमिकली दे आर बैकवर्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस हुआ है, इज्जत है, पैसा नहीं, इसलिए रिजर्वेशन चाहिए. स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, सोशल फॉरवर्डनेस विद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस
make them status anxious. Therefore, Satish Deshpande calls them backward forwards. Backward forwards. Last, second last basically, exclusion and inclusion error. Benefits by and large are snatched away by the top creamy layer of the backward caste or class, thus keeping the weakest among the weak always weak. ये बोलते हैं ओबीसी का बेनिफिट अभी तक उन लोग को मिला है जो कि ऑलरेडी फॉरवर्ड हैं, तो हमें क्यों नहीं? हम हैं असली बैकवर्ड। ठीक है, इसी की रीजन की वजह से क्या बना है इसको एड्रेस करने के लिए? रोहिणी कमीशन। ठीक है ना, इसी के लिए बना है। फोर्थ रीजन, लास्ट रीजन फॉर देयर डिमांड इज पॉलिटिकल सपोर्ट। इनके नंबर्स बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है इनकी, जाटों की, गुजरों की, पटेल की, इनके नंबर, ये पॉलिटिकल वोट बैंक बनाते हैं और पॉलिटिकल केमिस्ट्री डिसाइड करते हैं उस स्टेट की, लोकल पंचायतों की भी। इनके पास नंबर्स हैं, पॉलिटिकल क्लाउट है, अवेयरनेस ऑफ देयर ओन इलेक्टोरल क्लाउट मेक देम डिमांड रिजर्वेशन। हमें नहीं दोगे तो बेटा इलेक्शन हारोगे। समझे कि नहीं समझे? ये सब रीजन है बैकवर्ड स्टेटस के, कोटा मांगने के। ये रीजन आपको लिखने हैं, ऐसी हेडिंग देनी है। Always remember, when you write answer, don't write sentences or paragraphs without mentioning heading of that paragraph. When you write heading, your answer looks structured. I know we cannot do this for all the answers, but at least for those answers which we are expecting, these things can be prepared. कुछ चीजें तो रट्टा मारनी पड़ती हैं, आप भी एग्री करोगे, हम सब एग्री करते हैं। तो why not रट्टा मारो those things which are important. Okay. करंट में एटलीस्ट, स्टैटिक में तो सब रट्टा मारना ही पड़ता है वैसे भी। नाउ गेल ओमवेट, नेक्स्ट स्कॉलर व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर बिकॉज शी हैज डाइड दिस ईयर। गेल ओमवेट का स्पेसिफिकली मैं दे रहा हूं आपको कुछ कंपैरिजन। गेल ओमवेट हैज रिटन टू इंपॉर्टेंट बुक्स, वन इज दलित एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। दूसरी बुक विच गेल ओमवेट हैज रिटन इज कल्चरल रिवोल्ट, non-Brahman backward class movement in Maharashtra। ये दो बुक्स हैं उसकी, दलित्स एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, दूसरी कल्चरल रिवोल्ट। ओके, ये दो बुक्स। फर्स्ट उसकी बुक है, उसका मैं आपको एक समरी दे रहा हूं जो पढ़ के मैंने यहां पे लिख दिया है। मेन उसका एसेंस क्या है इस बुक में? दलित्स एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। She has made comparison actually in this book between pre-independence and post-independence movements. Okay. Pre-independence movement की अगर हम बात करें, वो बोलती है प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थी लार्जली देवर एंटी कास्ट मूवमेंट। आप देखो फूले को, देखो सत्यशोधक समाज, पेरियार को देखो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, एसएनडीपी को देखो श्री नारायण गुरुस्वामी, जस्टिस पार्टी नाइकर मुडलियार। ये सब लोग बेसिकली किसके अगेंस्ट थे? ब्राह्मण्स के। ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे। क्यों थे? क्योंकि जब वेस्टर्नाइजेशन हुआ, हु वर द प्राइमरी बेनिफिशियरी? ब्राह्मण्स। प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन, एम एन श्रीनिवास बोलता है। इनको आया गुस्सा कि भाई पहले भी ये लोग फायदे में थे, अब ब्रिटिशर्स आ गए हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डेमोक्रेसी आने की बात चल रही है, अभी भी ये लोग फायदे में, चेंज क्या आया? आओ चलो मिलके अब मूवमेंट करें, इनका बहुत हुआ। तो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट डेवलप होनी शुरू हो गई इन रिस्पॉन्स टू द बेनिफिट्स व्हिच वर स्नैच्ड बाय ब्राह्मण्स। ओके, और लार्जली बिकॉज दीज मूवमेंट्स वर अगेंस्ट ब्राह्मण्स, देयरफॉर एंटी कास्ट मूवमेंट इनको बोला जाता था इंडिपेंडेंस से पहले। These movement comprise non-Brahmin movements in Maharashtra, Satyashodhak Samaj, Tamil Nadu, self-respect movement, and Dalit movement in Maharashtra also. पंजाब में आदि धर्म मूवमेंट बोलते हैं मंगू राम की। ठीक है, मंगू राम जैसे फूले जो था मालीस के लिए, अति शूद्रस के लिए, वही मंगू राम था पंजाब में चमार्स के लिए। ओके, वेस्टर्न यूपी में आदि हिंदू मूवमेंट,
बंगाल में नाम शूद्र जो है, नाम में ही शूद्र है ही एक्चुअली दलित। बंगाल में दलित को नाम शूद्र कहते हैं। केरला श्री नारायण धर्म परिपालन, तमिलनाडु आदि द्रविड़ा, एंड आंध्रा आदि आंध्रा। Largely they were Dalit movement and non-Brahmin movement against Brahmins. ओके, इसलिए उसको एंटी कास्ट मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम क्या देखते हैं? आफ्टर 2 डेकेड्स ऑफ इनएक्टिविटी, 1970 तक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ नहीं, एंटी कास्ट मूवमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं 1970 तक। 1956 में देयर वाज योला कॉन्फ्रेंस, जहां पे अंबेडकर कन्वर्ट होते हैं बुद्धिज्म में, लेकिन उसका कोई मूवमेंट नहीं एज सच इमर्ज जैसे पहले होती थी। 1972 में 1972 में जाकर दलित पैंथर्स इमर्ज होता है। ठीक है, दलित पैंथर्स, और जो दलित नहीं थे, ठीक है, वो लोग किस मूवमेंट का नाम लेकर आते हैं? वो मूवमेंट होती है इनकी रिजर्वेशन की। ठीक है, जिसको आज तक हम डील कर रहे हैं, शुरू वहां से वो आज तक चल रहा है। ठीक है, तो गेल ओमेट ने इस बुक में ये कंपेयर किया है प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। नाउ लेट मी, नॉन ब्राह्मण मतलब हुसएवर इज नॉट ब्राह्मण, दे आर अगेंस्ट ब्राह्मण्स। नॉन ब्राह्मण और एंटी ब्राह्मण दोनों आप बोल सकते हो यहां पर। ठीक है, अब जैसे आपको याद है मैंने यहां पे एक टर्म दिया था, कहां गया वो? एंटी कास्ट मूवमेंट। ओके, एंटी कास्ट मूवमेंट के ऊपर ही गेल मूवमेंट आगे एक्सप्लेन कर रही है क्या है ये। एंटी कास्ट मूवमेंट आर बेसिकली एंटी सिस्टमिक मूवमेंट्स। ओके, एंटी कास्ट मींस एंटी सिस्टमिक, बिकॉज कास्ट डिफाइंड योर लाइफ चांसेस। तो कास्ट को अटैक कर रहे हो यानी सिस्टम को अटैक कर रहे हो। ओके, आपकी शादी कास्ट से होती थी, आपकी जॉब कास्ट, आपका स्टेटस कास्ट से आता था, आपका फूड बिहेवियर कास्ट। तो कास्ट के अगेंस्ट मूवमेंट यानी कि सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट। Dalits and non-Brahmin anti-caste movements can be called as anti-systemic movements since they sought to transform basic structure of Indian social system, replacing caste and accompanying oppression, economic exploitation and political domination by equalitarian society. Therefore, these aimed at felling the tree. Dalit movements are not just Dalit movement. Dalit movement are therefore movements which introduce democracy in India. समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? Dalit movement or non-Brahmin movement are not just movement by a caste against caste. These are movement which introduce democracy in India. Okay, because they were fighting on equalitarianism. They fought against Brahmins usurping the benefits under the colonial regime, when they introduced modern education, Brahmins were the first one to gain benefits of modern education. When they introduced modern bureaucracy, Brahmins again were the first ones to claim benefits under modern bureaucratic apparatus. Okay, so they fought against that structure. Therefore, democratization India में in backward class movement के through ही आया। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र, बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र, पेरियार in तमिलनाडु, नारायण स्वामी गुरु in Kerala, अच्युत नंद in UP, Banguram in Punjab, all attacked the system of exploitation at all levels, culturally, economically and politically. समझे कि नहीं समझे? ठीक है, दिस वाज एंटी सिस्टमिक। ये कौन सी बुक में है उसके? दलित्स एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, उसी बुक में चल रहा है। Okay, now next aspect of Gale movement, which is very important. So Gale movement is important for 2 reasons: Dalit movement and second backward class movement. Dalit movement मैंने डील कर लिया। Now last one is backward class movement. उसके ऊपर Gale movement क्या बोलती? बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, Gale movement, बुक का नाम है, अच्छा, दलित एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। ये तो चलो मैंने डील कर लिया ना। अच्छा, ये बैक चले गया था क्या वापस?
अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यू टॉक अबाउट एनी मूवमेंट, सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आदि धर्म मूवमेंट, आदि आंध्रा मूवमेंट, आदि हिंद मूवमेंट, आप किसी की भी बात कर लो, आपको हर मूवमेंट में कॉमन फीचर दिखेंगे कुछ। वो कॉमन फीचर्स गेल ओवेट हाईलाइट कर रही है। ओके, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स इन ऑल द मूवमेंट? फर्स्ट, रिजेक्शन ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। ठीक है, they proposed Dalit Bahujan nationalism. Why? Because they were never part of Hindu structures and they rejected Hinduism because Hinduism did not give them anything but low rank. So Hindu nationalism की जगह they proposed Dalit Bahujan nationalism. One thing which is common across all the movement. Okay. Rejection of Aryan racial theory. Aryan racial theory ने क्या किया? Aryan racial theory was proposed by Orientalists, as you know, but आर्यंस कौन कहलाए गए इंडिया में? इंडो आर्यंस कौन थे? ब्राह्मण्स। ओके, तो आर्यन रेशियल थ्योरी ने क्या दिखाया कि ब्राह्मण्स आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। दे रिजेक्टेड आर्यन रेशियल थ्योरी, इसका मतलब दे रिजेक्टेड द नोशन ऑफ ब्राह्मण बीइंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दिस लैंड। दे सेड ब्राह्मण्स कभी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं थे, आर्यंस हमको अटैक करने आए, हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इस लैंड के। दलित्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, आदि द्रविड़स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। इसका मतलब आर्यन यानी ब्राह्मण्स वर नेवर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। Aryan racial theory actually was originated by European Orientalists and picked up by modernist Brahmins as a way of asserting their superiority to dark-skinned low caste. Phule believed non-Aryans were original inhabitants and Aryans were outsiders who came here. Ambedkar believed Dalits to be original inhabitants. Periyar believed Dravida to be original inhabitants. इसका मतलब सब में एक चीज कॉमन है, सब कह रहे हैं आर्यन ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं है। कोई कह रहा है द्रविड़ा ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, कोई कह रहा है दलित ओरिजिनल इनहेबिटेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है? क्लेम है इस चीज का कि ओरिजिनल कौन है इंडिया में, यानी आर्यन रेशियल थ्योरी रिजेक्टेड। थर्ड, which is common across all the backward class movement, rejection of Hinduism as religion. They rejected Hinduism as religion. They believed Hinduism is imposed religion. किसने इम्पोज किया? आर्यंस ने। आर्यंस कौन है? ब्राह्मण्स। हम तो भाई दलित्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, हम तो भाई आदि द्रविडास ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, हिंदुइज्म हम पे इंपोज किया, ये लोग बाहर से आए आर्यंस, तो हिंदुइज्म को रिजेक्ट करेंगे ये ऑब्वियसली। ओके, escaping exploitation require low caste to declare themselves non-Hindu. इसलिए अंबेडकर बोलता था I was born Hindu, I will never die Hindu. ठीक है, अपने आप को नॉन हिंदू बोलोगे तभी लिबरेट होगे, हिंदू स्ट्रक्चर में रहोगे तो लो कास्ट माने जाओगे। Therefore, it is important to declare us as non-Hindu and take new religious identity. फूले ने देखो नया रिलीजन डेवलप किया, हर एक स्कॉलर ने बैकवर्ड क्लास मूवमेंट में हर एक स्कॉलर ने न्यू रिलीजन्स बनाए ताकि हिंदुइज्म से बचे। फूले ने बनाया थीस्टिक रिलीजन, पेरियर ने बनाया एथिज्म। एथिज्म की वो बात कर रहे हैं बेसिकली कि रिलीजन हटा दो। अंबेडकर बोलता है बुद्धिज्म, नारायण स्वामी बोलता है वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड। सबने रिलीजन के ऊपर काम किया। ठीक है, नेशनलिज्म का आइडिया रिजेक्ट किया, ओरिजिनल इनहेबिटेंट का आइडिया रिजेक्ट किया, रिलीजन को रिजेक्ट किया, तीन चीजें रिजेक्ट करी सबने। चौथा क्या रिजेक्ट किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिजेक्ट किया इन सब ने, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कौन थी? ब्राह्मण और बनिया पार्टी थी, इन लोगों के लिए अपर कास्ट की पार्टी थी। अंबेडकर बिलीव्ड कांग्रेस टू बी ब्राह्मण एंड बुर्जुआ पार्टी। फूले बोलता है कांग्रेस इज शेठजी भाटजी पार्टी। शेठजी भाटजी मतलब क्या होता है? ब्राह्मण एंड बनिया, शेठजी भाटजी। And therefore, Phule and Ambedkar proposed party which represent left and Dalits, base of workers and peasants. इसलिए रीजन है अंबेडकर ने बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है,
क्योंकि वो मानते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस अपर कास्ट के बेनिफिट्स को ही सिक्योर कर सकती है, इसलिए हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। और लास्ट में इन सब में और क्या कॉमन है? इकोनॉमिक रेडिकल्स। आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया था, फूले एज अग्रेरियन रेडिकल। ठीक है, गेल ओवेट इसकी एक्चुअली बात करती है, शशि थरूर भी इसकी बात करता है, दो लोग हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रेडिकल भी एक कॉमन फीचर है इन सबका। ऑल ऑफ देम आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स नॉट जस्ट विद लो कास्ट बट आल्सो विद पेजेंट्स एंड वर्कर्स। Phule attacked exploitation of peasants by bureaucracy. Ambedkar and Phule organized peasant movements against landlords and worker movement against capitalists. इसलिए इकोनॉमिक रेडिकल्स भी हैं ये। फूले जो था, जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी महाराष्ट्र में पेजेंट्स की, उसके लिए खड़ा होता था अगेंस्ट मनी लेंडर्स। अंबेडकर भी वर्कर्स के लिए खड़ा रहता था अगेंस्ट कैपिटलिस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक रेडिकल मतलब कि वर्किंग क्लास के लिए लड़ रहे हैं वो। ठीक है, चाहे पेजेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो। ओके, नाउ दलित बहुजन नेशनलिज्म का मतलब है कि नेशन का जो आइडिया है, जो हिंदुइज्म से आता है, उसको रिजेक्ट करो। हिंदुत्व का जो आइडिया है बेसिकली, दिस इज राइट विंग आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स रहे, हमने ये किया शुरू से ही, हम ये बोलते हैं तुम बाद में आए हो, हम थे पहले यहाँ पर। लेकिन हिस्ट्री की राइटिंग्स में हम गायब हो गए क्योंकि सब अल्टरनेट हिस्ट्री आई नहीं अभी तक हमारे ऊपर लिखने के लिए। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री अपर कास्ट हिस्ट्री है। इसलिए हिंदू हम आर्यंस को इक्वेट करते हैं ब्राह्मण से, जबकि फैक्ट ये कि दलित्स वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ये नीचे वाले बोलते हैं द्रविड़ वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, लेकिन अल्टीमेटली सब रिजेक्ट करते हैं ब्राह्मण की ओरिजिनल इनहेबिटेंसी थ्योरी को। यहां तक क्लियर है? तो यस बोलो जल्दी। क्लियर? यस बोलो। ठीक है, नाउ लास्ट नॉन ब्राह्मण मूवमेंट विच इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर। जो भी हमने अभी तक पढ़ी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की मैंने बात करी। ठीक है, गेल ओवेट की जो बुक है, लास्ट बुक जो उसने लिखी थी, वो दैट वाज ऑल अबाउट कल्चरल रिवोल्ट। ओके, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र। इसमें उसने तीन चीजें हाईलाइट करी गेल ओवेट ने। फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ सब एलिट्स। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट यानी बैकवर्ड क्लास मूवमेंट रिफ्लेक्टेड ग्रोथ ऑफ एलिट्स। फूले वाज एलीट। एलीट था वो। एलीट का मतलब अमीर नहीं होता। एलीट का मतलब अमीर नहीं होता। एलीट का मतलब क्या है? उस कम्युनिटी में कुछ इंडेक्सेस में जो सबसे बेस्ट है, स्टेटस वाइज, जैसा भी हो, पढ़ाई में हो, जैसा भी हो, वोकल हो, लीडरशिप स्किल हो, जो भी है। माली जात में फूले के अंदर वो थी, इसलिए वो दलित्स के लिए लड़ा, मालीस के लिए लड़ा, मंक्स के लिए लड़ा। ठीक है, तो फूले वाज एलीट बट नॉट जस्ट एलीट, ही वाज सब एलीट, क्योंकि ही वाज एलीट फ्रॉम डाउनवर्ड कास्ट। और एलीट कौन थे? ट्रेडिशनल एलीट, ब्राह्मण्स। इसका मतलब नॉन ब्राह्मण मूवमेंट ने हमें सब एलीट्स भी दिए। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, इसलिए वो बोलती है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में एक चीज ये है कि ग्रोथ हुआ सब एलीट्स का, विच कंपीटेड विद डोमिनेंट ट्रेडिशनल एलीट्स इन सोसाइटी विच वर ब्राह्मण्स। अंबेडकर वाज सब एलीट, एलीट फ्रॉम डाउनवर्ड कास्ट, डाउनवर्ड कास्ट, सब एलीट्स है, तो वो भी एलीट लेकिन डाउनवर्ड कास्ट के। पेरियार, नारायण स्वामी गुरु, अंबेडकर, फूले, सब एलीट्स। ओके, सेकंड क्या फीचर है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का? वो बोलती है दीज वर पेजेंट बेस्ड मास मूवमेंट ऑफ बहुजन समाज। बहुजन का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी किसकी है? ब्राह्मण्स की है या फिर ओबीसी एससी एसटी की है? बैकवर्ड क्लासेस की मेजॉरिटी है इंडिया में, अपर कास्ट ब्राह्मण्स की मेजॉरिटी नहीं, वो माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का सेकंड फीचर है पेजेंट बेस्ड मास मूवमेंट, बहुजन समाज का, अगेंस्ट इंडियन एलीट ऑफ इंटेलिजेंसिया एंड मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, द शेठजी एंड भाटजी। तो इंटेलिजेंसिया और मनी लेंडर्स जो हैं, लैंडलॉर्ड्स, इनके अगेंस्ट थी ये सारी मूवमेंट्स, यानी शेठजी भाटजी क्लास के अगेंस्ट थी, इसलिए पेजेंट बेस्ड मास मूवमेंट इनको बोला जाता है। पेजेंट क्यों? क्योंकि सब शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, लार्जली पेजेंट कम्युनिटी है।
ब्राह्मण्स कौन थे? इंटेलिजेंसिया में थे, मॉडर्न एजुकेशन में, ब्यूरोक्रेसी में थे। और क्षत्रिय कौन थे? मनी लेंडर्स भी थे, वैश्य मनी लेंडर्स भी थे। क्षत्रिय कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे। तो शेठ जी भाट जी क्लास के अगेंस्ट पेजेंट बेस्ड मास मूवमेंट थी ये बेसिकली। लास्ट, कल्चरल रिवोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि ये इसकी इस नाम से इसका किताब भी है, कल्चरल रिवोल्ट। कल्चरल रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? ये दिस आइडिया एक्चुअली शी हैज बोरोड फ्रॉम एंटोनियो ग्राम्सी, कल्चरल हेजेमनी एंड काउंटर हेजेमनी। कल्चरल हेजेमनी क्या होता है? व्हेन वैल्यूज ऑफ अपर कास्ट बिकम कॉमन सेंस टू एवरीवन, दिस इज नोन एज कल्चरल हेजेमनी। इसको तोड़ने के लिए काउंटर हेजेमनी डेवलप होती है। ठीक है, इसका मतलब राम हमारे लिए कॉमन हो गए हैं, राम को हम भगवान मान चुके, यानी वी हैव बिकम कल्चरली हेजेमनाइज्ड। ठीक है, तो ये लोग राम की नहीं, ये बात करेंगे शंभुक की और रावण की। अब वो हमारे लिए इतने ईविल हो चुके कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो कैसे गॉड है। बट वी नो दैट रावण की भी वर्शिप होती है, शंभुक की भी वर्शिप होती है। ओके, तो कल्चरल रिवोल्ट का मतलब होता है जो भी सिस्टम अपर कास्ट ने एस्टेब्लिश किया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसके अगेंस्ट पूरा नया सिस्टम ले आओ। दलित बहुजन नेशनलिज्म ले आओ, नया रिलीजन ले आओ, ठीक है, सब कुछ नया नया लेके आओ। Cultural revolt challenged the existence of traditionally ascribed statuses as basis for political or economic dominance and subordination. It deal with status categories, untouchables, women, which are at the lowest position within the traditional structures of dominance. Basically, cultural revolt क्यों बोलते हैं हम इसको, सारी बैकवर्ड क्लास मूवमेंट को? क्योंकि they dealt with challenging the traditional status-based dominance of the upper caste, because they use their upper caste status to gain political or economic dominance, इसलिए कल्चरल रिवोल्ट। एंटी कास्ट मूवमेंट यानी एंटी सिस्टमिक मूवमेंट, एंटी सिस्टमिक मूवमेंट यानी कल्चरल रिवोल्ट। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट गेल मूवमेंट। तो गेल मूवमेंट भी खत्म। चैलेंजेस इन कास्ट सेंसस, ये आप पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मेरे बताने वाला कुछ बचा नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लोगे आप, पीपीटी आपको मैं दे दूंगा, पढ़ लेना इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट इज एमटीपी एंड सरोगेसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड सरोगेसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के। ठीक है, अब ये चीजें मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ये अब पढ़ लेना। ठीक है, एमटीपी के ऊपर मैं आपको एक आर्टिकल दे दूंगा, सरोगेसी के ऊपर ईपीडब्ल्यू का एक आर्टिकल दे दूंगा, कल आपको मिल जाएंगे आर्टिकल, इनको पढ़ लेना, बात खत्म। आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, इनको एनालाइज कैसे करते हैं। सरोगेसी, सरोगेसी का मतलब क्या होता है? देखो, तीन चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020, सरोगेसी बिल अमेंडमेंट 2021, एंड थर्ड वन मोर वाज देयर, जो कि इंपॉर्टेंट चल रहा था, एबल टू रिकॉल इट, नहीं वो नहीं, वन मोर एक्ट वाज गोइंग ऑन, तीन एक्ट चल रहे थे 2019 का, 20 का और 21 का। एनी हाउ, उसके ऊपर मैं आता हूँ जैसे याद आता है। सरोगेसी के ऊपर अगर मैं आपको डायमेंशन कुछ दूं, वी नो सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है? वो थर्ड लेडी जिसके अंदर बच्चा पैदा होएगा। क्योंकि हम बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी का इशू है, हो सकता है मेरे में हो सकता है तुम्हारे में हो, लेकिन हम झगड़ने से अच्छा किसी तीसरी लड़की में जो अपना जो स्पर्म और एग है उसको कंबाइन करवा के, ठीक है, डलवा देते हैं, वो बच्चा पैदा करके हमें दे देगी। वो लड़की जो हमें बच्चा पैदा करके देगी, वो लड़की अपने आप को उस बच्चे का माँ नहीं बोल सकती, क्योंकि एग तुम्हारा गया, स्पर्म मेरा गया। ठीक है, तो वो अपने आप को माँ नहीं बोल सकती, वो सरोगेट मदर है सिर्फ, वो मदर नहीं है बायोलॉजिकल, वो सिर्फ सरोगेट मदर है। जैसी बच्चा वो दे देगी, हम उस लड़की को पैसा दे के हटा देंगे, तुम ही उसके सामने रहोगी, लड़के के सामने, लड़की के सामने, तुम ही मदर कहलाओगी। लेकिन अब पैसा देना अलाउड नहीं है, कमर्शियल सरोगेसी बैन हो चुकी है। अब सरोगेसी एक ही रह चुकी है, ऑल्ट्रोविस्टिक सरोगेसी। ऑल्ट्रोविस्टिक सरोगेसी के अंदर क्या लिखा है? हाँ, ARTES, थर्ड वो था, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये तीन इंपॉर्टेंट है भाई इस साल के, देख लो, पक्का सवाल है, बता रहा हूं, पक्का सवाल है, इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि तीनों डील करते हैं किससे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन से। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन या वुमेन का इश्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं पिछले 4 साल से। इन तीनों के ऊपर कुछ भी करके कुछ कंबाइन क्वेश्चन बन सकता है, जो भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक हिंट्स दे रहा हूं आपको, ठीक है। सरोगेसी का जो आइडिया है बिल में इस टाइम, अभी वो एक्ट नहीं बना है, अमेंडमेंट जो चल रही है उसके ऊपर, लेकिन डिस्कशन में तो है। सरोगेसी का जो आइडिया है, आप ये सोचो, ऐसे सोचो, सोशियोलॉजी के एनालिसिस करने के लिए आप ये समझो, एक लेस्बियन कैनॉट एंजॉय मदरहुड, ओके, बिकॉज लेस्बियंस आर नॉट अलाउड टू हैव चाइल्ड थ्रू सरोगेसी. Gays are excluded, bisexuals excluded, transgender excluded. All of them are deprived from parenthood. Okay, parenthood is a status. They cannot enjoy this status because the bill is exclusionary. Which means bill में दो प्रावधान है, दो provisions है mainly bill के अंदर. सरोगेसी में दो concept आते हैं, intending women और intending couple. Intending couple is eligible for surrogacy. Intending couple का मतलब है लड़का और लड़की कपल है, कुछ एज के हैं, वो 35 to 45 की ब्रैकेट है कुछ, मेरे को अभी ध्यान नहीं, लेकिन उस कैटेगरी के कपल को इंटेंडिंग कपल बोला है, यानी वो लोग सरोगेसी का फायदा उठा सकते हैं अगर वो इनफर्टाइल है। दूसरी तरफ सरोगेसी का फायदा कौन उठा सकती है? इंटेंडिंग वुमेन। अब ये इंटेंडिंग वुमेन कौन है? बेनिफिशियरीज दो टाइप के हैं, इंटेंडिंग वुमेन और इंटेंडिंग कपल। इंटेंडिंग वुमेन वो वुमेन है जो या तो डिवोर्सी है या वीडो है, या तो डिवोर्सी है या वीडो है, सिंगल नहीं। सिंगल वुमेन नहीं बच्चा ले सकती, शादी करनी पड़ेगी अगर बच्चा चाहिए। इतना समझ रहे हो मतलब कि नहीं समझ रहे हो? मैरिज इज सीन एज सच अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन that you may even have to sacrifice your life to gain parenthood. So this bill excludes the privilege of single motherhood. भाई एक लड़की है, उसको हस्बैंड नहीं चाहिए, उसको बच्चा चाहिए, बट वो नहीं हो सकता, तुमको शादी करनी पड़ेगी। यानी कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ थ्रू लॉज एंड लेजिस्लेशंस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, इसका मतलब this bill is against, is basically social exclusion का हमने एक आइडिया दिखाना है, वो जरूर दिखाना है। एक्सक्लूशन किसका? क्योंकि कपल में मैन और वुमेन की बात है, यानी कि दिस बिल इज रिप्रोड्यूसिंग हेट्रोनॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स। तो यानी कि होमोफोबिया, होमोसेक्सुअल्स को ये एक्सक्लूड करता है फ्रॉम पेरेंटहुड। दूसरा, ये बिल एक्सक्लूड करता है सिंगल मदर्स को, सिंगल वुमेन को, विच मीन्स हेट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स और हेट्रोनॉर्मेटिव नॉर्म्स एंड मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन between heterosexuals is reproduced. Through this bill. समझ रहे हो? तो this bill includes and this bill excludes also. बट हम एक्सक्लूशन की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, इंक्लूजन हम जीएस में लिखेंगे। ठीक है भाई, इसमें भी लिखेंगे, लेकिन उधर पहले लिखने के बाद फिर एक्सक्लूजन पे हम आएंगे। ठीक है, और फिर हम थोड़ा जेंडर सेंसिटिव होने की बात करेंगे कि भाई इतनी सारी मूवमेंट चली हैं वर्ल्ड ओवर, लेस्बियन गे प्राइड मूवमेंट, ये वो सब। ठीक है, तो उसके बाद से इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग हाईली कॉन्शियस ऑफ द अदर जेंडर्स, and the same thing can be observed when it comes to education, politics. Now we see representation of 2% people in reservation given to these people. इवन इन यूपीएससी अब इनके लिए रिजर्वेशन है, तो एक वो कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा है, वो लहर आते जा रही है, एक टाइम के बाद इधर भी आ जाएगी। हमने कुछ ऐसे नोट पे खत्म करना है। ठीक है, हालांकि अभी बिल की फॉर्म में एक्ट नहीं बना,
हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आपको मालूम है लास्ट ईयर यूपीएससी ने ड्राफ्ट बिल के ऊपर भी सवाल पूछ लिया, ठीक है, ड्राफ्ट जो बिल भी नहीं था एक्चुअली, जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर भी सवाल पूछ लिया, तो फिर इसके ऊपर सवाल तो अब बन भी सकता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू सरोगेसी, बाकी आप पढ़ लोगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एएआरटी वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और कुछ इश्यूज और हैं जो कि मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, टाइम मेरे को अलाउ नहीं करता। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। ओके, कोई डाउट है अब तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो अब हम निकले। पॉक्सो यार अब आप पढ़ लेना, पॉक्सो अब आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत इश्यूज हैं, देखो वही है कि टाइम के कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपसे आई विल बी शेयरिंग फ्यू आर्टिकल्स विद यू ऑन द इश्यूज विच आई कुड नॉट डिस्कस, ओके, वो इश्यूज आप जरूर पढ़ना। और क्या कहते हैं आपका, 3 इश्यूज हैं और जो बच गए हैं जिसको ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता था, बट अब मैं और कर भी नहीं पाऊंगा। फर्स्ट, डेमोक्रेसी की हेल्थ जो बिगड़ते जा रही है, ठीक है। डेमोक्रेसी के ऊपर सबमिट हुआ इस साल, दिस वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सबमिट ऑन डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी, telling democracy how to be democracy, which in itself is very authoritarianist tendency. A democracy dictating democracy how to be democracy. Okay, this is a new form of democracy which is evolving. Okay, so some democracies are authoritative democracy, some are democratic democracy or democratizing democracy जो evolve हो रही है। तो ये hierarchy create करता है within democracies. Okay, and also this concept is basically known as democratic backsliding. Okay, democratic backsliding is concept है which is coined by, as far as I can remember, 2-3 people are involved. आशुतोष वर्षने भी है और जिलेट करके भी एक स्कॉलर है, उसने भी ये कॉइन किया है। और अब मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ स्कॉलर। हाँ, जिबलाट, यस जिबलाट, जिलेट नहीं जिबलाट। ओके, तो ये इनके ऊपर पढ़ लेना। मैंने आर्टिकल भी शेयर किया आपसे, डेमोक्रेटिक रेजिलियंस क्या होता है, बावजूद इसके कि हमारी डेमोक्रेसी बैकस्लाइड हो रही है सो कॉल्ड उन लोगों के हिसाब से, व्हाट इज दैट वन थिंग which gives Indian democracy its foundation in such a strong form that our democracy fails to collapse. बजाय इसके कि लोग हम पे उंगलियां मार रहे हैं कि तुम्हारी डेमोक्रेसी बकवास है, उसके बावजूद भी हमारी डेमोक्रेसी सस्टेन क्यों कर रही है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं हमारी डेमोक्रेसी में जो हमारी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बना के रखते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी, मीडिया, जुडिशरी, मासेस, सोशल मीडिया, इन सब चीजों की आपने बात करनी। दीज आर द थिंग्स विच आर प्रोवाइडिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस टू डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने यूज करने हैं कि भले ही हमारी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग क्या होता है, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का मतलब होता है लीगली अनडेमोक्रेटाइज करना डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल 370 का पास, आर्टिकल 370 का अबॉलिशन लीगली हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ, उसके बावजूद भी अनडेमोक्रेटिक है बिकॉज इट डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द पीपल हु वर द स्टेक होल्डर्स। Therefore, it is legal, but it is not necessarily democratic. This is known as democratic backsliding. तो जब लॉज ऐसे डेवलप होते हैं डेमोक्रेटिकली, ओके, इन अ सोसाइटी विच फेल्स डेमोक्रेसी, दिस इज नोन एज डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी क्यों टिकी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रेजिलियंस है हमारे पास, और उसमें अपने इंस्टीट्यूशंस की बात करनी है। ये इंस्टीट्यूशन जो है कि हमारी डेमोक्रेसी को सीमेंट देते हैं, चाहे ऊपर से जितना पत्थर पड़े, ठीक है, वो आपने ऐसे करके लिखना है। और इशू क्या था, बाकी कुछ इश्यूज हैं, वेज फॉर हाउसवर्क मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। वेज फॉर हाउसवर्क वो भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। लड़की को, वुमेन को, हाउसवाइफ को पैसा देने से आप उसको लिबरेट कर रहे हो या फिर यू आर रिप्रोड्यूसिंग द स्टेटस को, यू आर लेजिटिमाइजिंग वुमेन्स रोल। व्हेन स्टेट इज प्रोवाइडिंग पेमेंट टू वुमेन फॉर हाउसवर्क, स्टेट इज एक्चुअली कंसिडरिंग हाउसवर्क एज वुमेन्स ड्यूटी। ओके, तो वो कुछ डायमेंशन है जो आपने पढ़नी है, सब इसका आपने लिंक लेना है उन सब चीज़ों से। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो मैंने पढ़ाई, वहाँ से आपने शुरू करना है। और टेस्ट 5 में जो डिस्कशन मैंने लिया था वेज फॉर हाउसवर्क का, वो भी आपने देखना है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ फीटिसाइड इज होलियर देन इन्फेंटिसाइड? नहीं, वही तो मैंने बताया,
कि भाई इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा हो गया उसके बाद मार दिया। तो मारने का मतलब क्या है, आप क्रिमिनल हो, आपने बारबेरिक एक्ट किया है। पर फीटिसाइड में क्या होता है, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आपने अंदर ही मार दिया। ठीक है, तो आप बच जाते हो ह्यूमन लाइफ को मारने की सजा से, क्योंकि आपने ह्यूमन पैदा ही नहीं होने दिया। तो इट इज सीन एज होलियर इन कंपैरिजन टू इन्फेंटिसाइड। समझ गए? तो दिस पीपीटी आई विल शेयर विद यू नाउ। ठीक है, आपको मिल जाएगी ये, आज रात को मिल जाएगी या फिर कल सुबह, जो भी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो दैट आई कैन लीव नाउ सेफली? हाँ बिल्कुल आ सकता है। एलजीबीटी के मैरिज राइट्स को लेके भी इशू चल रहा था, इस साल भी चल रहा था कि उनको मैरिज राइट्स नहीं देंगे। उसके ऊपर आप जरूर पढ़ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपने, बस आपको मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ। हालांकि मैं टेलीग्राम पे भी आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूंगा क्या क्या पढ़ना है। रीड अबाउट डेमोक्रेसी, इट्स फेलियर, चैलेंजेस। ठीक है, इसमें थिंक ऑन दीज लाइंस, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, एंड डेमोक्रेटिक रेजिलियंस। एंड ध्यान रखो, डेमोक्रेटिक रेजिलियंस के ऊपर यूपीएससी ने सवाल एक बार पूछा हुआ है 2014 में। इसका मतलब आ सकता है फिर से वो कंडीशंस डेवलप हो गई क्योंकि। तो डेमोक्रेटिक रेजिलियंस आप पढ़ो। ठीक है, और मैंने एक हैंडआउट भी शेयर किया हुआ है आपसे टेलीग्राम पे, उसको भी आप देख लेना पॉइंट्स के लिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या मैंने बोला, एमटीपी, एआरटी एंड सरोगेसी। एमटीपी 2020, एआरटी 2021 या 19, 2019 और सरोगेसी 2021। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। थर्ड, एलजीबीटी मैरिज राइट्स, ये भी इस साल न्यूज में था। ये मैरिज राइट्स इनको नहीं दिए जा रहे। ठीक है, फोर्थ, और कुछ तो नहीं बच गया? वो जो मैंने पढ़ा दिया वो तो हो गया, जो बच गया उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें बस ये 3 रह गए आई गेस। ठीक है, पॉक्सो एक्ट एक और देख लेना, पॉक्सो एक्ट। ओके, एंड फिफ्थ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एंड यस, वन मोर लास्ट, स्टार्टअप। स्टार्टअप इंडिया के ऊपर ईपीडब्ल्यू में एक आर्टिकल आया है, फर्स्ट रिव्यू ऑफ स्टार्टअप इंडिया सिंस इट्स इंसेप्शन। अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं दिया था ईपीडब्ल्यू में, इसी महीने रिव्यू आया है उसके ऊपर, रिव्यू आर्टिकल स्टार्टअप पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मैं डील कर चुका हूँ टेस्ट सीरीज के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका थर्ड फेज चला है 2021 में। ठीक है, और 40% वुमेन वर्कफोर्स को भी उसने रोल करवाया है स्किल्ड इंडिया में। ठीक है, पॉक्सो एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वाला इशू चल रहा था। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई किया है बॉम्बे हाई कोर्ट को ट्राई करके। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज। इसके बाहर आई डाउट कुछ आ सकता है करंट में, इसके बाहर कुछ डाउट, इसके बाहर कुछ आता है करंट में, तो यू ऑलवेज हैव चॉइस टू लीव द क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन वैसे भी करना कंपलसरी नहीं है सोशो में। ओके, बट जो कर सकते हो वो आप जरूर करना है इनमें से। ठीक है, यू हैव थिंकर्स आल्सो नाउ विद यू। ठीक है, चलते हैं फिर। सर कैन, ये तो हो गया, चलो ठीक है। ओके देन, बाय, सी यू ऑल रिजल्ट के बाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो बाय। वेलकम वेलकम।